Good morning and Jai Hind students. We are going to solve your latest second pre-board questions. In this series, I am going to talk about the questions, how to write the answers and how will you present the answer so that you can get the maximum mark. So, getting started with your question paper. We have the first question as question 1. It says that the Earth's core is known to contain iron, yet geologists do not regard this as a source of Earth's magnetism. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक अर्थ है और उस अर्थ में मॉल्टेन आपका आयरन है, नोन टू कंटेन आयरन, मॉल्टेन फॉर्म में आयरन होता है. सो बाय विच प्रॉपर्टी और किस वजह से आपके जो जियोलॉजिस्ट हैं वो उसको एक परमानेंट मैग्नेट नहीं मानते हैं. सो इसका आंसर जो आपको लिखना था, कई लोगों ने लिखा है कि बाय द वर्च्यू ऑफ मॉल्टेन लावा इट बिहेव एज अ फेरोमैग्नेटिज्म. यस, इट्स अ करेक्ट आंसर, बट यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन फॉर्मेट. फॉर दैट you just have to write, it's a one marker question and you have to write the answer is the earth core contains, the earth core contain iron but आयरन तो वो कंटेन करता ही है, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है? आयरन but in molten state. This was the important term, that it contains iron but in the form of liquid, molten iron. So it will behave as a ferromagnetic material. These two terms was that is the molten state and ferromagnetism, the property by which iron is not susceptible to the earth's magnetism, या मैग्नेटिज्म की वो प्रॉपर्टी जो ना तो पूरा मैग्नेट है ना ही वो पूरा मैग्नेट नहीं है, इन द मिड फॉर्म. तो वही ये दो वर्ड, इफ यू राइट दीज टू वर्ड्स इन योर आंसर्स फॉर वन मार्क क्वेश्चंस, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड यू विल प्रोवाइडेड, यू विल अवॉर्डेड बाय अ फिक्स्ड मार्क्स. दैट इज वन. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इट सेज इज mention one use of part of electromagnetic spectrum to which a wavelength is 21 centimeter. आपसे कह रहा है कि आपको अर्थ या वो वेव लिखनी है, that way you are provided with wavelength of 21 centimeter. It's a standard value 21 centimeter. For this questions you have to, this question comes from the electromagnetic wave, और इस questions के लिए आपको करना ये था that you have to remember all the tabulated form, जो आपकी tabulated form थी, जो आपके NCERT में भी था, आपको वो चीज़ याद रखनी थी. If you remember that thing, this was written in terms of millimeter as 0.0121 millimeter, and this frequency, this wavelength is belong to nothing but the microwave. So your answer was of microwave. If you have written this question, this answer, आपको पूरे मार्क मिलते हैं. माइक्रोवेव, आपको ये फ्रीक्वेंसी का टेबल आपको एनसीईआरटी के इस आई थिंक राइट साइड पेज पर आपको वो एनसीईआरटी का पूरा टैबलेटेड फॉर्म में फ्रीक्वेंसी वर्सेस आपकी वेवलेंथ, ये तीनों चीज आपको दिया होता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन का और, इट वाज द फर्स्ट पार्ट एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज इन द और फॉर्म व्हिच शोज दैट गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 40 nanometer and 600 nanometer traveling in vacuum. You have to give the ratio 400 nanometer and 600
नैनोमीटर। सो वैक्यूम की बात कर रहा है, दैट मीन्स वैक्यूम की बात जब वो कर रहा है तो वैक्यूम में आपको एक चीज याद रखनी थी, दैट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव is always 1:1. This is the velocity wave. Is that okay? Okay. Question number 3 shows that two alpha particles are traveling in the same magnetic field. Question number 3. For that I need this piece. Okay. Question number 3. Two alpha particles are traveling in same magnetic field, one with velocity v and another with velocity 2v, both are normal to the direction of magnetic field. Find the ratio of their time period. That means one is moving with velocity v, another is moving with velocity 2v, and they are alpha particles. Question number 3 I am talking about. So we know that F is equals to QVB. This is the force experienced by any charged particle which is in magnetic field. So F is equals to QVB, which is nothing but mv square by r. That means centripetal velocity जो आपके अंदर की तरफ लग रही है, mv स्क्वायर बाई r. सो आपको करना ये था, यहाँ से आप r का रिलेशन निकालते, जस्ट मेक r एज अ सब्जेक्ट, इट विल बिकम एज mv स्क्वायर बाई qvb. इज इट ओके? यहाँ से आपने क्या किया, r को सब्जेक्ट बना लिया, सो mv स्क्वायर बाई qvb. नाउ सिंस वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट half mv स्क्वायर, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसका क्या होगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको लग रहा है, दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आपका. सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी divided by m. That means if we try to equate the value, what I will get is 2 kinetic energies upon m. Is that okay? यहाँ तक ये निकाल सकते हैं हम लोग, ये निकाल सकते हैं. Now the time period formula is T is equals to under root of 2m by k upon qb, और यही टाइम पीरियड हमारा इक्वल होता है 2 पाई r अपॉन v के. ठीक, तो क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं? क्या मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ? T is equals to अंडर रूट 2m k अपॉन qb 2 पाई r अपॉन v. क्या मैं इसको इक्वल कर दूं? सो जब आप इसको इक्वल करेंगे तो 2 पाई r अपॉन v विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb. यहाँ से इक्वल करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ रही है, दैट द टाइम पीरियड इज नथिंग बट डिपेंडेंट ऑन मास अपॉन b, m upon b, m upon q. आपने किया क्या? F is equals to qvb, which is equal to the centripetal force. R is equals to mv square by qvb. Kinetic energy is known as the half mv square, and this v square is equals to 2 kinetic energy upon m. V को simplify under root 2 km 2 kinetic energy upon m. Now the time period formula is T is equals to under root 2 m k upon qb, where t is equals to also we know as 2 pi r upon v. ये सर्कल का जितना आपका रेडियस होता है उसको कवर करने में जितना टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड ये भी आ रहा है, टाइम पीरियड ये भी आ रहा है, आपने दोनों को निकाल दिया. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मास अपॉन चार्ज. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन वाज वेलोसिटी विद v and 2v, that means velocity was v and 2v. By the changing of velocity there is no change in the time period. We have to find the ratio between their time period. तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर वेलोसिटी v से घूम रहे हैं या वेलोसिटी 2v से घूम रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आपका वही का वही है, तो
आपके टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज के मास और चार्ज पर डिपेंडेंट होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 3 एज पर दिस सीरीज। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन एक जगह पर और कैसे आपको प्रेजेंट करना था वो आपको एक जगह मिलता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, आप अगर ये ना भी लिखते तो भी ठीक था। आप डायरेक्टली ये रिलेशन दिखाते दैट टी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास अपॉन चार्ज, और ये आप तुरंत वहाँ पे दिखा देते कि वेलोसिटी से आपका जो है कोई रिलेशन। दैट्स ओके। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।